Hi, hello friends. Welcome to Pulse Excel. So today in this video lecture, I am going to discuss kinetic and non-kinetic methods of determining reaction mechanism. So in the last lecture, we already discussed about so many concepts from this determination of reaction mechanism. That is, we briefly discuss on the how to determine the intermediate, how to isolate and trapping the intermediate. Along with that, also we discover the importance of the kinetic and the thermodynamic concept under the determination of reaction mechanism. So after covering those particular topic from this actually chapter, that is the kinetic and non-kinetic methods of determining reaction mechanism, in the today's lecture, we are briefly talk on the kinetic isotope effect. So now these are the actually student the most important concept in the mechanism of organic reaction. So as you can see on the heading of the topic is a kinetic isotope effect. So here the most important key point that you need to clearly understand the role of isotope. So the basic definition of isotope, you already people are know that the isotope is nothing but the where atomic number should be the same but atomic masses are different, so which we can call it as an isotope. So now in the organic reaction mechanism, what is its exactly role? तो वही आज हम हमारे पूरे टॉपिक में स्टडी करेंगे. सो द लेटेस्ट फर्स्ट अंडरस्टैंड दिस एक्चुअली रोल ऑफ आइसोटोप अंडर दिस determination of reaction mechanism is that kinetically we understand the change in the rate of reaction by using this concept, and secondly non-kinetically we understand the reaction mechanism and distribution of isotopes in product, or we can say intermediate. So these are the actually things that you can understand at the end of the day. So now further, this actually kinetic isotope effect is further divided into mainly two types. और उसके type से यहाँ पे student primary kinetic isotope effect and second one will be the secondary kinetic isotope effect. Now these are the actually two type is totally depending upon the bond breaking, because once we talk about the reaction mechanism means here we are talking about the bond breaking and the bond formation. So isotope का मतलब यहाँ पे that in the given your organic chemical reaction, whenever your CH bond which are just supposed to be substituted, if that particular bond is break down in the rate determining step, okay, so those effect particularly known as what your student primary kinetic isotope effect. And if that bond is not considerable, okay, for the what you are this particular concept, so that type is actually known as what your student secondary kinetic isotope इफेक्ट. तो मतलब यहाँ पे क्लियर है कि आइसोटोप जो इफेक्ट है जनरली व्हाट इट इंडिकेट्स दैट द आइसोटोप इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व व्हेन वन एटम of your reactant molecule is replaced with another isotope of that atom. तो उसे यहाँ पर हम लोग स्टूडेंट बोलते हैं KIE का मतलब है काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट. तो फॉर एग्जांपल अगर आपके केमिकल रिएक्शन में कहीं पर भी CH अगर बॉन्ड है तो that actually hydrogen is replaced with its own isotope, that is the deuterium. तो deuterium के साथ उसका क्या होगा स्टूडेंट, रिप्लेसमेंट होगा. So as soon as you are going to be replace the one of the atom of the reactant molecule with the deuterium, so how they changes the rate of reaction and how they change of the rate of reaction affect the reaction mechanism, that part you are just going to see in the today's lecture. So now let us start with the first concept of these KIE is a primary kinetic isotope इफेक्ट PKIE. अब जनरली प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोप जो इफेक्ट होता है स्टूडेंट वो पूरा का पूरा आपका डिपेंड होता है CH जो होता है, ये जो बॉन्ड जब आपका ब्रेक होगा मतलब CH यहाँ पे क्या हो रहा है आपका सब्स्टिट्यूट हो रहा है ड्यूटेरियम के साथ, तो ये बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक होना जरूरी है. सो व्हेन दिस बॉन्ड इज गोइंग टू बी ब्रेक इन द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप RDS, ठीक है, तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो होगा उसमें ये बॉन्ड ब्रेक होना जरूरी है. तो जो आप इफेक्ट यहाँ पे स्टडी करोगे उस इफेक्ट को यहाँ पर हम लोग स्टूडेंट बोलते हैं प्राइमरी kinetic isotope effect. Now you can see these actually concept throughout the chemical reaction. So I'm not explaining the so many examples so that from that example you can clearly understand that what is the PKI. So here now on the slide you can see this is the actually first actually example of the what your primary kinetic isotope effect. So now here you can see this is actually chemical reaction. So here generally I am just going to go with the alkyl actually halide. यहाँ पे मैंने एक बेस लिया हुआ है इथोक्साइड बेस. अब बेस का काम होता है जनरली टू एक्सट्रैक्ट द प्रोटॉन एंड फाइनली हियर यू विल गेट द अल्कीन type of the product. So this is the general chemical reaction. So now
to looking at this actually means reactant and the substrate molecule, you probably tell me the mechanism. तो आप mechanism immediately बता सकते हो कि base ने they're just going to abstract the one of the proton from the reactant molecule, and then the Br is actually very good Lewin group, so that is going to be eliminated. तो जनरली अगर हम लोग प्रोबेबल मैकेनिज्म के बारे में बात करें तो सेम जो केमिकल रिएक्शन है वी जस्ट गो विद द टू मैकेनिज्म पाथवे. तो हम लोग इवन जो होता है एलिमिनेशन रिएक्शन वो भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं या फिर E2 मैकेनिज्म. सो हियर यू कैन सी दिस इज एक्चुअली योर मैकेनिज्म वन प्रोबेबल मैकेनिज्म. तो ये हम लोग जनरली स्टार्ट करें E1 पाथ से. अब E2 पाथ से. अब E2 मैकेनिज्म का मतलब यहाँ पे क्या होता है, जनरली ये जो इथोक्साइड है इनिशियली एब्स्ट्रैक्ट द बेस, मतलब जो भी है बेस वो एब्स्ट्रैक्ट क्या करेगा यहाँ पे प्रोटॉन. तो अब यहाँ पे जो इथोक्साइड जो ये this is immediately abstract this proton, and immediately these bond carbon and hydrogen here break down, and these bond migrate towards the over here, and immediately the carbon and Br these bond will be break down. तो आप अगर देखोगे in this actually mechanism one your CH bond is break, तो यहाँ पे देखो bonds are going to be break in the rate determining state. So this is your mechanism one. Or if I'm just going to see now the second probable mechanism for the same example, so now here I'm follow the what here E1 path means E1 mechanism. अब यहाँ पे देखो हम लोग either we just go with these और second probably यहाँ पे these are the X is actually what your good living group. तो सबसे पहले हम लोगों ने इसको remove किया. So in the rate determining step you are just supposed to start with the formation of carbocation. अभी यहाँ पे आपका कार्बोकेटायन फॉर्म हुआ. सो इन द नेक्स्ट स्टेप अगेन व्हाट विल हैपन, दिस इथोक्साइड जो हमारा बेस है दैट विल एब्स्ट्रैक्ट द प्रोटॉन एंड दीस चार्जेस आर गोइंग टू बी न्यूट्रलाइज एंड यू विल गेट योर अगेन अल्कीन प्रोडक्ट. सो दिस इज द एक्चुअली mechanism number 2. Now if I'm going to ask you from the mechanism 1 and mechanism 2 which mechanism is going to be accurate or correct for this particular actually kinetic isotope effect, तो जनरली यहाँ पे क्या होगा, if you are going to looking at the second mechanism means your E1 actually mechanism, so here the first step which is the formation of carbocation, so this carbocation formation is what your primary, so that is actually not stable carbocation बराबर. तो ये स्टेबल कार्बोकेटायन नहीं है. तो दिस इज एक्चुअली वन रीजन दैट व्हाई ओवर द मैकेनिज्म 2 मैकेनिज्म 1 इज फेवरेबल फॉर दिस पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन. सो बिकॉज ऑफ द एक्चुअली स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटायन कंसिडरेशन यहाँ पे वो इतना स्टेबलाइज नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे चूज करेंगे ओवर द मैकेनिज्म टू विच मैकेनिज्म नंबर 1, बिकॉज यहाँ पे जनरली हम लोग दोनों रूल्स को फॉलो करें. अगर हम लोग सेकेंड मैकेनिज्म कर रहे हैं तो यहाँ पे एक तो कार्बोकेटायन स्टेबल भी नहीं है, एंड सेकेंड चीज जो हमारा यहाँ पे कंपल्सरी जो एक नेसेसरी जो थंब रूल है क्राइटेरिया है टू लुक एट द एक्चुअली प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट, क्या CH बॉन्ड ब्रेक होना चाहिए रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में. तो यहाँ पे वो CH बॉन्ड भी तो नहीं ब्रेक हो रहा है, तो यहाँ पे जो है कार्बन हाइड्रोजन जो बॉन्ड है दैट इज इंटैक्ट, वो एज सच प्रेजेंट है. सो दैट्स व्हाई द मैकेनिज्म 2 इज नॉट फेवरेबल इन द केस नंबर 1. तो मैकेनिज्म 1 यहाँ पे क्या होगा, फेवरेबल होगा. ना इफ आई एम गोइंग टू बी रिप्लेसिंग नाउ दिस हाइड्रोजन विथ रिस्पेक्ट टू वॉट यूर ड्यूटेरियम, तो सेम रिएक्शन अभी हम लोग करेंगे बट विथ रिस्पेक्ट टू ड्यूटेरियम. अब यहाँ पे मैंने डी लगाया, यहाँ पर भी मैंने डी लगाया और रिप्लेस किया. So now if I'm going to find the individual rate of the both the chemical reaction, तो हमें जो यहाँ पे उसका ओवरऑल जो वैल्यू मिलेगा KH over KD वैल्यू, तो वो यहाँ पर आपको स्टूडेंट मिलेगा 6.7. और जब आप यहाँ पे प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट को स्टडी करते हो, सो दिस पर्टिकुलर वैल्यू जो होता है आपका दैट इज जनरली नियरली अप टू 7 तक होता है. तो अगर यहाँ पे मान लीजिए अगर वो वैल्यू अप टू 7 तक आपको मिलती है, द KH over KD वैल्यू अप टू 7 अगर आपका आंसर आता है, तो वहां पे प्रोबेबली नहीं, वहां पे 100% स्टूडेंट आपका क्या होगा, प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट जो होगा वो प्रेजेंट ही होगा. ठीक है, तो जनरली हम लोग ये जो रेंज होता है ये हमें रेंज करना है 2 to 7, मतलब मोर देन 2 अगर आपकी वैल्यू है KH over KD वैल्यू रेट कांस्टेंट का, तो वो वहां पे क्या होगा स्टूडेंट, आपका प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट होगा. और जनरली KH ओवर KD जो वैल्यू होती है उसे हम लोग यहाँ पे ड्यूटेरियम आइसोटोप इफेक्ट भी बोलते हैं, बिकॉज यहाँ पे हम लोग ड्यूटेरियम को क्या करें, हाइड्रोजन को हम लोग ड्यूटेरियम से क्या कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं. ओके, सो दिस एक्चुअली रेशियो जो है उसे यहाँ पे काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट बोला जाता है. दिस वैल्यू इज एक्चुअली हेल्प्स टू डिटरमाइन द फाइनल रिएक्शन मैकेनिज्म. अब मैं आपको सेकंड एग्जांपल बताऊंगी सिमिलर. अब यहाँ पे अगर देखोगे ये जो मैकेनिज्म, इसमें आपका जो KH ओवर जो KD वैल्यू है फॉर दिस एक्चुअली सेकंड एग्जांपल इट इज एक्चुअली 1.4. अब फर्स्ट एग्जांपल में ये वैल्यू था 6.7, इट्स वेरी नियर टू 7. बट नाउ इफ यू आर गोइंग टू बी लुकिंग एट द सेकंड एग्जांपल व्हिच आई एम गोइंग टू शो ऑन द स्लाइड, these are actually provided at the value 1.4. so this is actually what less than 2, मतलब ये 2 से कम है. ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे ये है कि
प्रोबेबली यहाँ पे प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोप जो इफेक्ट है वो लेस है या फिर नहीं होगा, बट क्यों, अब वो हम लोग यहाँ पे स्टडी करते, बट स्टिल यू नीड टू कंसिडर कि प्रोबेबली होना चाहिए, बिकॉज वैल्यू अगर एक से ज्यादा है तो वहां पे प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट होता है, बट इट शुड बी अ वेरी लेस ना रीजन व्हाई। अब यहाँ पे देखो द रीजन इज दैट नाउ आई एम गोइंग टू बी रिप्लेसिंग दिस हाइड्रोजन एज सच है, बट यहाँ पे दो अब मिथाइल ग्रुप अटैच हुए हैं, अब यहाँ पे हम लोगों ने वाटर लिया है, देन अगेन यू विल गेट द अल्केन, द सेम रिएक्शन ओनली वी रिप्लेस नाउ हियर द मिथाइल ग्रुप। ओके, अब यहाँ पे सिमिलरली आपको क्या करना है, फर्स्ट वी फॉलो द सेम व्हाट यूर मतलब SN2 जो मैकेनिज्म मतलब E2 पाथ वही हम लोग फॉलो करेंगे। सो दिस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वाटर abstract the proton, then bond between the carbon and hydrogen breaks down and coming to over here, and then these Br will be eliminated. So this is the path number 1. But now if I am going to now here in the according to the your thumb rule for the primary kinetic isotope effect, your CH bond which are going to be substituted, that has to be break down in the rate determining step. So here will be your pKi is going to be present. तो ये तो रूल यहाँ पे मैकेनिज्म 1 में फॉलो हो रहा है, बिकॉज CH बॉन्ड ब्रेक भी हो रहा है आपके रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में, बट स्टिल यू हैव द लेस वैल्यू 1.4, तो इसका आंसर यहाँ पे 1.4 क्यों है वो अब मैं आपको बताऊंगी। अब आप अगर यहाँ पे सेकंड मैकेनिज्म देखोगे, सो दिस इज द सेकंड प्रोबेबल मैकेनिज्म। नाउ इन दिस मैकेनिज्म व्हाट यू आर जस्ट सपोज्ड टू डू, यू आर जस्ट सपोज्ड टू स्टार्टेड विद द EM मैकेनिज्म जो है हमारा वो फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले होगा आपका फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। तो जैसे आपने Br जो आपका गुड लिविंग ग्रुप है, हैलाइड ग्रुप जब इसे एलिमिनेट होगा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में, CH जो बॉन्ड है वो एज सच इंटैक्ट होगा इन द सेकंड मैकेनिज्म, बट यहाँ पे आपका कार्बोकैटायन, बट नाउ वी आर लुकिंग एट द कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी। तो टर्शियरी जो कार्बोकैटायन होता है दैट इज द हाईली स्टेबल, तो बिकॉज ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकैटायन दिस मैकेनिज्म आल्सो गोइंग टू बी मोर फेवरेबल कंपैरेटिवली योर मैकेनिज्म 1, right? So because of actually this particular reason, now I'm just supposed to now replacing over here this hydrogen with respect to deuterium. तो अगर मैंने यहाँ पे ड्यूटेरियम के साथ उसका अगर मैंने रिप्लेसमेंट किया, एंड नाउ इफ आई एम गोइंग टू बी कंपैरिजन द बोथ द एक्चुअली रेट कांस्टेंट वैल्यू फॉर द सेकंड एग्जांपल KH और KD वैल्यू, so because of the possibility of the strong that your carbocation should be the most stable, so the value should gets reduced over here and the value that you will get here the 1.4. अब ये जो वैल्यू है ये आपको यहाँ से पता नहीं चलेगा कि वो कब मैक्सिमम वैल्यू होगा, कब वो 1.4 होगा, कब वो 3.2 होगा। नाउ दिस एक्चुअली वैल्यू टोटली डिपेंडिंग अपॉन दी व्हाट योर बॉन्ड ब्रेकिंग। तो बॉन्ड ब्रेकिंग है इसका मतलब फॉर एग्जांपल समझिए यहाँ पे मेरा कोई तो A मॉलिक्यूल है और यहाँ पे मेरा कोई तो सपोज B मॉलिक्यूल यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। अब इसका कुछ तो मास होगा M1, इसका कुछ तो मेरा मास M2। तो जब आपका मॉलिक्यूल यहाँ पे ब्रेंड हो रहा है तो इसमें क्या होता है, दो मॉलिक्यूल के बीच में होता है स्ट्रेचिंग। तो यहाँ पे जनरली हम जो फोकस करते हैं वो स्टूडेंट होता है आपके स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन के ऊपर। अब स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन है, करेक्ट है, तो जनरली इसके लिए जो हम लोग फॉर्मूला जो यहाँ पे कंसीडर करते हैं, सो इन द प्रीवियस लेक्चर आई ऑलरेडी टॉक अबाउट द रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम, जिसमें हम लोग देखते हैं दैट हाउ योर रिएक्टेंट कंप्लीटली कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट वाया द ट्रांजिशन स्टेट। तो ट्रांजिशन स्टेट मतलब इंटरमीडिएट वो कैसे डिटेक्ट करना है वो भी मैंने आपको पढ़ाया था। तो इसमें जनरली जो मोस्ट इंपोर्टेंट रोल होता है वो किसका होता है, आपके मासेस का, मासेस ऑफ द योर बोथ द एलिमेंट, एंड दैट इज गोइंग टू बी रिलेटेड विथ योर हुक्स लॉ। और हुक्स लॉ जो होता है आपका क्या है, दैट योर फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशनल जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज द न्यू इज इक्वल टू व्हाट 1/2 पाई। क्या है फॉर्मूला, 1/2 पाई क्लोज अ ब्रैकेट K अपॉन म्यू, ठीक है, एंड दिस इज द स्क्वायर रूट। अब ये जो म्यू होता है ये यहाँ पे है रेडियस मास, दिस इज द फोर्स कांस्टेंट वैल्यू, ये है आपकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पर आप अगर देखोगे दिस वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट योर रेडियस मास। तो अगर आपका रेडियस मास इंक्रीज हो रहा है मतलब उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी वो वहां पे क्या होगी, कम होने वाली है। तो इन द केस ऑफ नाउ ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम का मास ज्यादा है, ड्यूटेरियम का अगर मास ज्यादा है तो उसका लोअर क्या होगा, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होगा। सो विथ रिस्पेक्ट टू एक्चुअली दिस इक्वेशन व्हेन यू आर जस्ट supposed to plot now the potential energy versus the reaction coordinated diagram for this particular reaction, तो ये आपको जाके ऐसे कुछ तो ऐसे पीक मिलेगा। अब यहाँ पे देखो तो जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे CH है तो यहाँ पे CH और CD, तो लोअर वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी किसका होगा, CD का होगा, उसके बाद किसका होगा, यहाँ पे CH का होगा। एंड हियर कंपैरेटिवली नाउ द डिफरेंस बिटवीन दिस एक्चुअली एनर्जी डिफरेंस जो बिटवीन है CD एंड ओवर द CH कंपैरेटिवली अगर प्रोडक्ट करेंगे तो ये यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, कम होगा। एंड देन हियर द दिस एक्चुअली ट्रांजिशन स्टेट में जो इसका डिफरेंस होगा दैट इज अगेन गोइंग टू बी सिमिलर। नाउ विथ रिस्पेक्ट टू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, अगर हम लोग यहाँ पे एक्टिवेशन का एनर्जी को अगर कंपैरिजन करें, सो दिस इज नाउ आई एम एक्सट्रापोलेटिंग, ओके, सो दिस इज द CH, ठीक है,
तो ये हुआ CH का, और ये एक्टिवेशन एनर्जी हुआ E2. सो दिस इज व्हाट योर स्टूडेंट E1 एंड दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी व्हाट योर E2. ठीक है, एंड नाउ यू आर जस्ट सपोज टू कंपेयर हियर द वैल्यू. तो यहाँ पे आप अगर देखोगे तो CH जो है that should be always greater than the what value of the CD. So this is how looking at the reaction coordinate diagram that how the vibrational frequency playing the most important role. ये भी यहाँ पे बहुत मैटर करता है that how this KH over the KD value is going to be increase or the decrease. तो यहाँ पे 6.7 है तो probably नहीं 100% PKI इफेक्ट है. यहाँ पर PKI इफेक्ट होगा but वो लेस होगा because of the probable. तो यहाँ पे mechanism 1 is not going to suitable but the mechanism 2 is suitable. और यहाँ पे mechanism 1 है, mechanism 2 suitable नहीं होगा. अब ये हुआ कि कहाँ पर आपका लेस इफेक्ट है, कहाँ पे आपका ज्यादा पीकेआई इफेक्ट है. अब कुछ ऐसे भी एग्जांपल्स आपको स्टूडेंट मिलेंगे केमिकल रिएक्शन जहाँ पे आपका प्राइमरी आयोनिटी आइसोटोप इफेक्ट प्रेजेंट भी हो सकता है या फिर कंप्लीटली एब्सेंट भी हो सकता है. अब ये जो लेस और हायर जो इफेक्ट होता है काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट, अगेन दैट इज गोइंग टू बी डिपेंडिंग अपॉन द रिएक्शन मैकेनिज्म, जिसमें हम लोग अभी जो मैंने आपको डायग्राम बताया था उसमें आपका होता है ट्रांजिशन स्टेट, मतलब आपका जो इंटरमीडिएट. अब ये जो इंटरमीडिएट होता है whether they are the linear intermediate or they are the non-linear transition state. Depending on that also this value KH or the KD value is going to be increase or the reduce. So suppose this should be 1.4 and this should be 6.7. So whenever the two molecules are going to be stretching, interacting with each other और bond जब breaking होता है, अगर वैल्यू आपके मोर है तो इसका मतलब वहां पे ये है कि इसके बीच में जो भी आपका ये जो ग्राफ यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ पे जो भी आपका ट्रांजिशन स्टेट होगा that should be linear in nature, that it indicates. बट अगर यहाँ पे आपकी वैल्यू 1.4 है इन द लाइक सेकंड एग्जांपल, तो इसका मतलब यहाँ पर है कि यहाँ पे जो आपको ट्रांजिशन स्टेट जो मिलेगा स्टूडेंट दैट शुड बी नॉन लीनियर. अब नॉन लीनियर ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पर है तो इसका मतलब यहाँ पे है कि वहां पे आपका स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी स्ट्रेचिंग नहीं है, वहां पे आपका क्या है बेंडिंग वाइब्रेशन क्रिएट हो रहा है. एंड वंस यू आर टॉकिंग अबाउट द बेंडिंग वाइब्रेशन मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट द एंगल. तो एंगल अगर वहां पे जनरेट होता है बेंडिंग वाइब्रेशन है तो बेंडिंग वाइब्रेशन एक्चुअली डजंट इफेक्ट, तो उसका कुछ वहां पे 0 पॉइंट एनर्जी पे उसका कुछ इफेक्ट होता ही नहीं है. सो नाउ लुकिंग एट द थर्ड एग्जांपल से आपको मैं बताऊंगी व्हाट इज द नॉन लीनियर ट्रांजिशन स्टेट, जिसकी वजह से आपका पीकेआई का जो वैल्यू होता है दैट इज गोइंग टू बी रिड्यूस. अब यहाँ पे देखो these are the actually third example of the chemical reaction. So these are the NR2 will be the again a very good living group. अब यहाँ पे mechanism क्या होगा, the first thing this is the actually oxygen ion जो negative जो है charges, so this is already electronegative atom, ऊपर से कार्बन आयन है तो ये जो ऑक्सीजन आयन है this is again migrate. तो ये सबसे अब यहाँ पे नेबरिंग जो ग्रुप है खुद ही एक ही मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है. सो दिस नाउ नेगेटिव आयन माइग्रेट टुवर्ड द हाइड्रोजन, वो उसको एब्स्ट्रैक्ट करेगा इमीडिएटली. अब देखो यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन जो बॉन्ड है दैट इज गोइंग टू बी ब्रेक डाउन, दिस बॉन्ड विल बी माइग्रेट ओवर हियर, इमीडिएटली दिस बॉन्ड विल बी ब्रेक डाउन. तो यहाँ पे जनरली NR2OH जो ग्रुप है वो यहाँ से क्या होता है एलिमिनेट होगा एंड देन फाइनली यू विल गेट दिस अल्किन प्रोडक्ट. सो दिस इज द फर्स्ट मैकेनिज्म. अब इसे अगर इंडिविजुअली आपको और अच्छे से समझना है तो सबसे पहले क्या करो, H का जो है हाइड्रोजन जो है डिप्रोटोनेशन उसका एब्स्ट्रैक्शन हम लोग दिखाते हैं. तो OH यहाँ पे आया तो यहाँ पे क्या हुआ कार्बन आयन बना, तो जैसे ये कार्बन आयन बना ये यहाँ पे माइग्रेट होगा, दिस बॉन्ड विल बी एलिमिनेट. तो मतलब एट द एंड ऑफ द NR2OH जो ग्रुप है वो एलिमिनेट होगा. अब आप यहाँ पे देखोगे सो दिस इज वन काइंड ऑफ साइक्लिक यहाँ पे ट्रांजिशन स्टार्ट फॉर्म हो रहा है. तो इट इज लाइक अ कंसंट्रेटेड मैकेनिज्म है. तो ये बहुत जरूरी होता है व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द डिटर्मिनेशन ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म. तो आपको सारे प्रोबेबल मैकेनिज्म में देखना कि आपका इंटरमीडिएट क्या है, आपका वो कौन सा मैकेनिज्म है. तो इन द अर्लियर केसेस यहाँ पे जो हम लोगों ने E1 एंड E2 मैकेनिज्म फॉलो किया था तो इसमें हम लोगों ने E2 जनरली E1 मैकेनिज्म में वी आर टॉकिंग अबाउट दी what is formation of carbocation and we looking into it the stability and depending on that we decided that which mechanism will be more preferable, right? So in the same way when we discuss actually these third chemical reaction, अब यहाँ पे क्या है एक cyclic transition state form हो रहा है, मतलब ये concentrated mechanism है. like ये यहाँ से मतलब रिएक्शन में ये सॉरी स्टूडेंट मतलब ये रिएक्शन में ये माइग्रेट यहाँ पे हो रहा है, ये बॉन्ड यहाँ पे, ये बॉन्ड यहाँ पे, तो एक कंटिन्यूसली रिएक्शन हो रहा है. सो दिस इज व्हाट. अब यहाँ पे देखोगे जो हमारा सेकेंड जो रिएक्टर मॉलिक्यूल, बिकॉज ये इंडिविजुअल दो सबस्ट्रेट थे करेक्ट, ये यहाँ पे इथोक्साइड है और ये आपका अल्काइल है, तो इंडिविजुअल इंटरेक्शन, बट यहाँ पे सिंगल मॉलिक्यूल में ही आपका इंटरेक्शन हो रहा है तो नेबरिंग मॉलिक्यूल खुद उसके ही अंदर है. So that is why what will happen, so this is like a concerted mechanism. तो यहाँ पे एक एंगल बनेगा. तो सपोज फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पे सिंप्लीफाइड कर देती हूँ मैं. सो A यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट बना, दिस इज द B, ट्रांजिशन स्टेट बना यहाँ पे C. सो दिस इज हाउ द क्रिएटिंग द एंगल. अब यहाँ पे होगा उनका इन प्लेन एंड आउट ऑफ द प्लेन बेंडिंग. तो अब यहाँ पे स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी के तो चांसेस है नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा बेंडिंग. तो अगर ये दोनों यहाँ पे नीचे जा रहे हैं तो ये यहाँ पे ऊपर आएगा. ठीक
ठीक है, तो ये अगर ये साइड जा रहा है तो ये फिर ये साइड जाएगा, तो इन प्लेन आउट प्लेन यहाँ पे क्या होगा, वाइब्रेशन होगा, एंड दिस इज गोइंग टू बी कंप्लीटली नेग्लिजिबल योर 0 पॉइंट एनर्जी. तो बिकॉज ऑफ एक्चुअली दिस काइंड ऑफ द नॉन लीनियर ट्रांजिशन स्टेट, द डिफरेंस बिटवीन द CD और द CH वैल्यू जो होती है वाइब्रेशन के, इन द एक्चुअली योर पोटेंशियल एनर्जी का जो डायग्राम होता है उसमें वो वैल्यू क्या हो जाता है, कम हो जाता है. सो दैट्स व्हाई for this kind of the non-linear transition state, whenever it is going to be applicable in the reaction mechanism, you have the KH over the KD value is always less. तो यहाँ पे आप अगर देखोगे this value should be 3, तो यहाँ पे आपको क्या वैल्यू मिल रहा है 3. बट अगर यहाँ पे सिमिलर यही अगर इक्वेशन है और आपको ऐसे A है यहाँ पर attach with the B and same attach with the C, so this is the actually your what, ट्रांजिशन स्टेट. तो अगर ये ट्रांजिशन स्टेट आपको मिलता तो ये क्या है, सिमेट्रिक इन नेचर है, तो सिमेट्रिक यहाँ पे हो रहा है, ठीक है. तो यह हुआ आपका लीनियर ट्रांजिशन स्टेट. एंड व्हेनेवर इन द एनी रिएक्शन मैकेनिज्म यू विल गेट द लीनियर ट्रांजिशन स्टेट, मींस यू विल गेट द KH और KD वैल्यू जो आपको स्टूडेंट मिलेगा वो क्या मिलेगा, मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा नियरेस्ट टू 7 और 8, ठीक है. सो दिस इज व्हाट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू नीड टू क्लियरली अंडरस्टैंड to identify the pKIE in which reaction they are going to be applicable. तो नेक्स्ट जो की पॉइंट है जो आपको याद रखना है फॉर दिस, तो पूरा कंसेप्ट होने के बाद वी जस्ट रिवाइज द फ्यू टर्म जो आपको नोट करना है फॉर द पीके इज दैट आइसोटोप रिप्लेसमेंट has been made in a bond that is broken in the rate determining state. तो सबसे पहले रिएक्शन मैकेनिज्म में आपको कभी भी कोई भी एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो विथ रिस्पेक्ट टू ड्यू टू दिस काइनेटिक आइसोटोप आपको तो सबसे पहले ये चेक करना है कि जो भी आपका CH बॉन्ड रिप्लेसमेंट है सब्स्टिट्यूट में जा रहा है वो ब्रेक हो रहा है कि नहीं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में. दैट इज द फर्स्ट थंब रूल. एंड सेकेंडली यू नीड टू गो विद द नाउ ट्रिक, यू नीड टू वेरी प्रिसाइज विद द वैल्यू. अगर KH अपॉन KD वैल्यू इज नियरेस्ट टू 7, अगर वो मैक्सिमम मतलब 2 से ज्यादा, नियरली इट्स अबाउट 2 मतलब ग्रेटर देन 2 to 7 के बीच में आ रहा है, तो डेफिनेटली दैट इज गोइंग टू शोज अ प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट कंपलसरी. उसके बाद नेक्स्ट है अगर KH अपॉन KD वैल्यू मतलब KH ओवर द KD वैल्यू अगर इज इक्वल टू एक्जैक्टली 1 है, तो वहां पे आपका प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट स्टूडेंट क्या होगा, प्रेजेंट नहीं होगा. तो ये भी आपको यहाँ पे वैल्यू को याद रखना है कि दैट इज व्हाट इज अ गिवन वैल्यू. ओके, द थर्ड ट्रिक रूल विल बी द KH ओवर द KD वैल्यू अगर लेस देन 1 है, सो मतलब यहाँ पे अगर देखते हो सो ग्रेटर देन द 1, तो भी यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, दैट इज गोइंग टू शोज द PKIE. तो मैंने जैसे कि बोला 2 to 7 तो होगा, बट वो लेस एक्चुअली प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट उसमें क्या होगा, प्रेजेंट होगा. So this is how these are the actually few points that you have to remember. And the lastly, the most important thing, you should remember the reaction coordinated diagram for the each and every with respect to CH and the CD value with respect to zero potential energy. अब zero potential energy जो स्टूडेंट होता है जनरली व्हाट इज, बिकॉज यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है अकॉर्डिंग टू अगर फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, सो दिस इज द एक्चुअली वाइब्रेशनल एनर्जी जनरली गिवन बाय द n plus half is equal to h nu. ठीक है, and this actually n having the value is equal to 0, 1, 2, these are the, and when this n correspond to the 0, तो उस एनर्जी को यहाँ पे स्टूडेंट हम लोग क्या बोलते हैं, जीरो पोटेंशियल एनर्जी. एंड जीरो पोटेंशियल एनर्जी अगर हम लोग कंसिडर करते हैं फॉर द CD एंड विथ रिस्पेक्ट टू CS, तो हमें ये पता है दैट फ्रीक्वेंसी अकॉर्डिंग टू योर हुक्स लॉ, द फ्रीक्वेंसी एंड द रेडियस मास दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. तो अगर आपका रेडियस मास इंक्रीज हो रहा है तो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी क्या होगी, लोअर होगी. तो CD का मास ज्यादा है तो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी कम है, तो इसका जीरो पोटेंशियल एनर्जी जो होगा सबसे नीचे होगा. उसके अबव होगा यहाँ पे CS. एंड नाउ विथ रिस्पेक्ट टू अगर माउंटेन पीक मतलब अगर हम लोग यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट को कंसिडर कर सकते, सो दिस पॉइंट इज वेरी नियरेस्ट टू दिस माउंटेन पीक. तो इसमें जो एनर्जी जो डिफरेंस जो है यहाँ पर वो क्या होगा, यहाँ पे कम होगा. तो ये वेरी इमीडिएटली यहाँ पे रीच होगा टुवर्ड्स द नेक्स्ट ट्रांजिशन स्टेट कंपैरेटिवली और स्टेडी. तो यहाँ पे आप अगर देखते हो विथ रिस्पेक्ट टू CH एंड CD ट्रांजिशन स्टेट एक्टिवेशन एनर्जी, तो क्या है यहाँ पे CH एंड द CD, CH विल बी द व्हाट ऑलवेज ग्रेटर देन द व्हाट यूर व्हाट CD. तो ये पॉइंट जो होती है ये आपको प्रॉपरली याद रखने इन द प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट. So now after understanding all the primary kinetic isotope effect, सेकेंड जो टॉपिक है यहाँ पे स्टूडेंट वो है सेकेंडरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट, स्काई. स्काई में जनरली क्या होता है, ये बहुत सिंपल है. यहाँ पे सेम हमें बॉन्ड ब्रेकिंग देखना ही है, बट CH जो बॉन्ड होता है प्राइमरी जो अटेंशन जो हम लोग ने प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोप में देखा था वो यहाँ पर नहीं है.
विथ रिस्पेक्ट टू एक्चुअली नेक्स्ट, मतलब कार्बोनिल कार्बन के बाद जो भी हमारा फर्स्ट कार्बन होता है, जैसे कि अल्फा हुआ या फिर बीटा कार्बन हुआ, विथ रिस्पेक्ट टू दैट जो भी हमारा यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हो रहा है वो हमें यहाँ पे कंसिडर करना है, एंड ड्यू टू दैट दे आर कंप्लीटली चेंज देयर हाइब्रिडाइजेशन। ओके, तो सेकेंडरी काइनेटिक आइसोटोप जो इफेक्ट है, इट इज टोटली डिपेंडिंग अपॉन द व्हाट योर alpha and beta position of your carbon and hydrogen with respect to bond breaking in the rate determining step, and along with that you need to be more precise with the hybridization changes. तो hybridization कैसे change हो रहा है, that you now going to look into both this example. Now you can looking at this particular now example. तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट अल्काइल हैलाइड लिया हुआ है, तो यहाँ पे X माइनस मतलब गुड लिविंग ग्रुप चला गया। तो सबसे पहले मैंने यहाँ से क्या किया, जो गुड लिविंग ग्रुप था उसको मैंने हटा दिया, तो यहाँ पे क्या हुआ, कार्बोकैटायन जनरेट हुआ। बट नाउ इफ यू आर गोइंग टू बी लुकिंग एट द फर्स्ट एग्जांपल, द CH बॉन्ड एज सच इंटैक्ट है, बराबर, वो एज सच वहाँ पे उसके साथ कुछ भी नहीं हुआ, दैट इज एज गोइंग टू बी इंटैक्ट, बट द ज्योमेट्री of your substrate molecule that is going to be change। अब ज्योमेट्री क्या यहाँ पे चेंज हो रही है, that your first जो कार्बन था यहाँ पे sp3, now that sp3 hybridization changes into what your sp2 hybridization, and because of that the value जो मतलब जो रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है, के जो वैल्यू है ओवर दी और के डी वैल्यू, दैट्स सपोज टू बी यहाँ पे अफेक्ट होगा, तो वो वैल्यू यहाँ पे चेंज होती है, तो वही हमें यहाँ पे देखना है, एंड दैट इफेक्ट एक्चुअली नोन एज व्हाट इज टू सेकेंडरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट। अब यहाँ पे सेकेंड एग्जांपल देखो, तो यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन था, that is the again stable, but now in the second case, now here you are just talking about the Diels-Alder। अब ये भी यहाँ पे क्या है, डाइनोफाइल है, डाइन से ये यहाँ पे हो रहा है आपका कंसर्टेंट मैकेनिज्म, तो ये यहाँ से बॉन्ड यहाँ पे गया, ये बॉन्ड यहाँ पे, ये बॉन्ड यहाँ पे, ये बॉन्ड यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका साइक्लिक कंपाउंड बना। तो यहाँ पे इनिशियली जो प्रॉब्लम था वो था हाइब्रिडाइजेशन कार्बन का sp2, now that is going to be changed into what here sp3। तो अब यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन चेंजेस हो रहा है, how they are affect the reaction mechanism, that you need to clearly check out। अब यहाँ पे देखो, this is how now in the secondary kinetic isotope effect depending upon the CH with respect to that position alpha and the beta, ठीक है, what I'm saying, the alpha and beta you are just going to be further divided this kinetic isotope effect। अगर वो अल्फा पोजीशन पे अफेक्ट हो रहा है इन द इनिशियल फर्स्ट स्टेज पे, अगर वो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है एंड यू आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द चेंजेस इन द हाइब्रिडाइजेशन, तो उसे हम लोग बोलते हैं नॉर्मल काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट। बट अगर वो बीटा कार्बन पे जाके अगर कुछ चेंजेस दे रहा है, तो उस पर्टिकुलर कंसेप्ट को यहाँ पर हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट इनवर्स काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट। नाउ इन द नॉर्मल एंड इनवर्स काइनेटिक आइसोटोप देयर इज अ वेरी smallest and the fine line of the changes, so that you can see from the clearly from this actually potential energy diagram। अब in the first example if you are going to be look into it, the normal kinetic what isotope effect वो जनरली कब होता है, पोटेंशियल एनर्जी हम लोगों ने ड्रॉ किया। अब यहाँ पे देखो हम लोगों ने ड्रॉ किया है sp3, सो दिस इज योर व्हाट सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल फॉर द इनिशियल। तो हम लोग बात कर रहे हैं अभी यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल में, ठीक है। सो योर sp3 नाउ चेंजेस इनटू द sp2, तो यहाँ पे CD जो है उसका क्या है, लोअर वाइब्रेशनल पे होगा, CH यहाँ पे होगा। तो जैसे ही वो उन्होंने ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पे फॉर्म कर लिया, सो यू विल गेट ये नॉर्मल। अब नॉर्मल का यहाँ पे मतलब क्या है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्चुअली डिफरेंस इनटू बिटवीन देयर एनर्जी गैप। तो एनर्जी जो गैप है यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट में CD और CH, दैट इज अप्रोक्सीमेटली अ वेरी लेस कंपेरेटिवली सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। कंपेरेटिवली अगर हम लोग बात करें व्हेन इट इज गोइंग टू बी चेंज इनटू द sp2, तो CD और CH का जो एनर्जी जो डिफरेंस है इन बिटवीन बोथ द CH एंड CD, दैट इज approximately very less comparatively transition state and the substrate molecule। So what it indicates that the activation energy with respect to what your deuterium, that is going to be very greater than the what your activation energy for the what your hydrogen, because of the what is stability of the carbocation in the first case, and because of that hybridization you will get such kind of the potential diagram, और यहाँ पर उसे बोला जाता है नॉर्मल। अब इसके exactly रिवर्स होगा आपके सेकंड स्टेप में, बिकॉज यहाँ पर हम लोग क्या करें, that your sp2 hybridization now completely convert into the sp3। now over here what will happen, the energy जो होती है comparatively hydrogen, that is going to be more greater than the value of the what your activation energy जो value है deuterium का, उससे वो ज्यादा होगा। so this terminology is going to be completely changed in the case of the what inverse। तो इनवर्स में क्या होगा, the एनर्जी जो डिफरेंस है वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी जो 0 पॉइंट एनर्जी जो है कंपेरेटिवली sp2 CD and C, दैट इज गोइंग टू बी कंप्लीटली नेग्लिजिबल, वेरी लेस अमाउंट एट
if you're talking about the transition state, now in the transition state, if you are going to be looking at the zero potential energy transition state, जो gap energy difference है, that is going to be very large. और उससे भी ज्यादा अगर हम लोग को प्रोडक्ट जो मिलता है यहाँ पे फाइनली जो sp3 कन्वर्जन होगा, these are the actually again the various biggest larger gap. तो ये completely क्या है, यहाँ पे inverse phenomena है, तो इसे यहाँ पर हम लोग बोलते हैं secondary kinetic isotope effect. That is the meaning of the what your changes of the that alpha and beta position. So according to that you need to check कि कौन से केमिकल रिएक्शन में आपका वहां पे कैसे चेंजेस हो रहा है. So ये बहुत जरूरी है स्टूडेंट, that whenever you are talking about the secondary and the primary kinetic isotope effect with respect to what your student जीरो पोटेंशियल जो डायग्राम होता है वो आपको यहाँ पे कंसिडर करना है. तो ओवर दी आप अगर यहाँ पे बात कर रहे हो sp3 व्हेन इट इज गोइंग टू बी चेंजेस टू व्हाट sp2, सो आई एम हियर मेंशनिंग द रेट कांस्टेंट जो होता है kh ओवर द kd, दैट इज ऑलवेज ग्रेटर. तो ये किसमें होगा स्टूडेंट, रिएक्शन स्टेप इन्वॉल्विंग चेंजेस फ्रॉम व्हाट sp3 टू sp2. तो यहाँ पे जनरली ये जो वैल्यू होगा kh अगर ग्रेटर है, इसका मतलब जो रेशियो होगा kh ओवर द kd दैट शुड बी ग्रेटर देन 1. अब अगर इनवर्स के बारे में यहाँ पे हम लोग बात करें तो ये एग्जैक्टली अपोजिट क्या होगा, तो यहाँ पे जो kd वैल्यू है वो यहाँ पे क्या होगी, रेट कांस्टेंट इसका ज्यादा होगा कंपेरेटिवली ओवर व्हाट kh. तो यहाँ पे डेफिनेटली kh अपॉन जो kd वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, लेस देन 1. तो इसका वैल्यू क्या होगा, एक से भी क्या होगा यहाँ पे कम होगा. इसका मतलब यहाँ पे क्या है, एनर्जी जो है E2 एंड E1, तो इसकी क्या है E1 की एनर्जी जो है यहाँ पे ज्यादा है. सो दैट इज व्हाट एग्जैक्टली मीनिंग, बिकॉज यहाँ पे देखो एनर्जी जो डिफरेंस है वो यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, वेयर एज दिस एक्चुअली ट्रांजिशन स्टेट डिफरेंस. तो ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, दैट इज द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन CH ओवर दी CD. और ये जो डिफरेंस होता है टोटली डिपेंड्स होता है किसके ऊपर स्टूडेंट, द बॉन्ड लेंथ ऑफ द CD ओवर दी CH. तो अगर हम लोग कंपेरेटिवली यहाँ पे इन दिस एग्जांपल अगर सेकेंडरी काइनेटिक इफेक्ट में अगर हम लोग बॉन्ड लेंथ के बारे में बात करें तो ओवर दी CH विल बी द हैविंग मोर बॉन्ड लेंथ कंपेरेटिवली ओवर CD. एंड बिकॉज ऑफ द मोर बॉन्ड लेंथ की वजह से जब उनका वाइब्रेशन स्टार्ट होगा, स्ट्रेचिंग जब वाइब्रेशन स्टार्ट होगा तो यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस जो होता है, रिपल्शन वो ज्यादा हो जाता है कंपेरेटिवली ओवर CD. So because of that they are just going to be creating this kind of the gap. So again it will be the more deeper according to this how you are going to be correlate with this concept with this particular value. So I hope so this conversion you should completely understand that how you are going to be identify the secondary kinetic isotope effect and the primary kinetic isotope effect. But still you have any doubt so you can definitely ask me student. अब secondary kinetic isotope effect में जो point आपको यहाँ पे note down करना है वो point यहाँ पे ये होगा कि नॉर्मली इन्वॉल्व हाइब्रिडाइजेशन चेंजेस, ये आपको याद रखना है. एंड आइसोटोपिक जो सब्स्टिट्यूशन हो रहा है एट द अल्फा एंड बीटा पोजीशन, व्हाट आई एम सेइंग, अल्फा एंड द बीटा पोजीशन ऑफ बॉन्ड दैट इज ब्रेकिंग इन द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. तो यहाँ पे डायरेक्टली CH नहीं, अल्फा एंड बीटा जो होगा बॉन्ड वो ब्रेक डाउन होगा इन द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में आगे जाके. तो जो कंसर्टेंट मैकेनिज्म यहाँ पर जो है, तो यहाँ पे देखो ये 4 हाइड्रोजन से 1 2 3 4 ओके. तो ये यहाँ पर सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे किसके साथ स्टूडेंट, विद दी ड्यूटेरियम. ठीक है, और ये यहाँ पे मान लो यहाँ पे R वैल्यू है, तो क्या चेंजेस होगा वो आपको यहाँ पे देखना है. एंड वेयर एज इन द थर्ड केस जो यहाँ पे कार्बोकैटायन मिल रहा है आपको, तो ये जो हाइड्रोजन है ये यहाँ पे देख लीजिए वो रिप्लेस किसके साथ होगा, ड्यूटेरियम के साथ. So this is how in the sp3 and in the sp2 में जनरली यहाँ पे क्या हो जाता है, sp2 में आपका जो है वो प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, लीनियर. तो बिकॉज ऑफ दैट देयर इज अ नो सिग्निफिकेंट स्टेरिक इफेक्ट. बट कंपेरेटिवली अगर आप एग्जांपल नंबर 1 में अगर बात करते तो इन प्लेन और आउट ऑफ प्लेन में जाके अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको प्रॉपरली क्या मिल जाता है, वहाँ पे स्टेरिक उनका इंटरेक्शन हो जाता है. ठीक है, तो ये कुछ बेसिक टर्म्स है जो आपको प्रॉपरली याद रखने हैं. अब ट्रिक पॉइंट जो मैंने वैल्यूज आपको ऑलरेडी बोला था, दैट इज दी KH एंड KD वैल्यू और दी ग्रेटर देन दी 1. तो नॉर्मली क्या जो है वो इफेक्ट शो होगा जिसमें ये वाला जो ट्रांजिशन होगा sp3 टू sp2 होगा एंड KH और दी KD होगा, तो KH की वैल्यू ज्यादा होगी. अगर वो लेस देन 1 है तो यहाँ पे क्या होगा, डेफिनेटली स्टूडेंट आपका सेकेंडरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट होगा स्काई, बट वो क्या होगा, इनवर्स काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट होगा जिसमें KD वैल्यू जो होती है दैट इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन द KH वैल्यू एंड यू विल हैव द changes from sp2 to what here sp3 hybridization. So these are the actually second point. And now after understanding the both the actually phenomena, that is what is the primary kinetic isotope effect and the secondary kinetic isotope effect. The lastly, if you understand both the topic, so here is the example.
आपको मुझे बताना है that from both the example that which one will be the your primary kinetic isotope effect and which one will be the secondary kinetic isotope effect. So here is your homework student. तो जनरली यहाँ पे देखो मैंने KH वैल्यू दोनों दी है और यहाँ पे KD वैल्यू तो दोनों मैंने दिया हुआ है. इसका रेशियो निकालो, रेशियो निकलेगा KH अपॉन KD वैल्यू. तो इससे आपको पता चलेगा कि अगर वो 7 के नियरेस्ट टू 7 है या लेस देन 7 है, ग्रेटर देन 1 है, so what will be the your kinetic isotope effect. And after that looking at that actually KH और the KD वैल्यू. सेकंड है आपको यहाँ पे देखना है मैकेनिज्म. मैकेनिज्म में CH जो बॉन्ड है वो अगर रेट डिटरमाइनिंग में ब्रेक हो रहा है तो वो PKIE होगा, प्राइमरी होगा. बट अगर CH बॉन्ड इंटैक्ट है, अल्फा एंड बीटा पोजीशन अगर मैकेनिज्म में अफेक्ट हो रहा है, हाइब्रिडाइजेशन चेंजेस हो रहा है मैकेनिज्म में, तो डेफिनेटली दैट शुड बी योर सेकेंडरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट. एंड सेकेंडरी में भी अब आपका वो नॉर्मल है कि वो इनवर्स है, ये डिपेंड होगा उसके KH एंड KD वैल्यू के ऊपर. तो ये प्रॉपर्ली देख लेना. तो विथ रिस्पेक्ट टू दिस वैल्यू यू कैन इजिली फाइंड आउट दैट दीज आर द which kinetic isotope effect. So I hope so. With this point I'm going to be stop over here only. So thank you so much student watching this video. If you really like this video, so don't forget to subscribe us. And once again, thanks a lot. Like a Hellcat.